Hello students, in our earlier video we have studied about national income and its related aggregates. In related aggregates what we have studied? We have studied about gross and net and all that. If you have not watched the earlier videos, you will not be able to understand this next chapter. So please go through the videos to understand this chapter. Okay? Now see, in our today's video, what we are going to study? Today we are going to study our fourth chapter, that is measurement of national income. Means how we are going to measure national income. National income को कैसे measure करते हैं? So national income को कैसे measure करते हैं? For measuring national income, see, there are three methods. There are three methods. For that, with this three methods, we will understand how to measure national income. But before understanding the methods of national income, first of all, let us see, students, what is the meaning of national income. Okay, before understanding the chapter's name, measurement of national income, let us understand what is the meaning of national income. Now see, what does it refers? It refers to the factor income earned by normal residents of a country in a year. Now see, what is the meaning of factor income? In my earlier videos I told you, factor income means what? Any income which is earned through any productive services. Productive services means the money which is earned by doing some work, मतलब मेहनत से कमाने वाले पैसे, not just like any scholarship money received or not. That will not come under this national income. So it refers to the factor income earned by normal residents of a country in a year. Getting it? So this is the simple meaning of national income. Now just see, what is actually this national income? See, in my earlier video I was talking to you about domestic income. Domestic income means what? During a year means पूरे साल भर में इंडिया के लोगों ने जो भी पैसा कमाया है, that income is known as what? Domestic income. Now see, domestic income plus NFIA is equal to national income. अब इसका मतलब क्या होता है? Just see. What is the meaning of national income? National income का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, domestic income plus NFIA. और domestic income का meaning क्या है? The income which is earned by the people of a country living in India plus NFIA. इसका मतलब इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर वालों ने भी जो भी पैसा कमाया है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में. वंस अगेन आई एम टेलिंग, नेशनल इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती है? डोमेस्टिक इनकम मतलब पीपल लिविंग इन इंडिया, प्लस इंडिया के बाहर जो इंडियंस रहते हैं वो जो पैसा कमाते हैं, दैट मनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड दैट इज नोन एज NFIA. व्हाट दैट इज नोन एज NFIA, net factor income from abroad. This concept I have made it clear in my earlier video. Okay, now in my earlier video I also told you what is the meaning of domestic income. Domestic income को हम NDPFC लिख सकते हैं कि नहीं? Net domestic product at factor cost. Domestic income is also written as NDPFC, net domestic product at factor cost, plus NFIA. NFIA मतलब factor income received from abroad is equal to what? NNP. NNP मतलब net national product at factor cost. मतलब नेशनल इनकम को हम लोग क्या लिखेंगे? NNP लिखेंगे. डोमेस्टिक इनकम को क्या लिखेंगे? NDP. Understand these basic concepts. This meaning if you don't understand, you will not understand the further part of this chapter. I hope this much part is clear to you. नेशनल इनकम को क्या का मतलब क्या होता है? NNPFC, net national product at factor cost. And remember always, what you are going to remember that हमेशा कॉस्ट जो होती है ना, सारी इनकम जो होती है वो कॉस्ट पे ही होती है, मार्केट प्राइस पे कभी नहीं होती. इसीलिए यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट है. ओके, सो व्हाट इज नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDPFC प्लस NFIA इज इक्वल टू NNPFC. NNPFC मतलब नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. So this was about national income, simple meaning of national income. I hope you might have understood. Now see children, now you will wonder who is doing the calculation of this NNP. मतलब national income को measurement कौन करता है? क्या आप और हम करते हैं क्या? Are we doing? No.
हाउ? इट इज डन बाय अ association. What is its name in India? Central Statistical Association. What is the work of that? They have to estimate national income. See, once again I'm telling, it is calculated by an organization, and that organization's name is what? Central Statistical Organization. They have the work of estimating what? National income. Now how it does? How they will calculate the national income? उन लोग कैसे calculate करेंगे? Will they go to each and every individual? Yes, what is your national income? What is your national income? What is your? No, that is not the correct way. For calculating or for measuring national income, there are 3 methods. Okay, there are 3 methods given in your book. So in this chapter we are going to study first the 3 methods how to calculate this national income. The first method is what? Value added method. Second method is what? Income method. And the third method is what? Expenditure method. First of all, only understand the name और इन तीनों भी नाम का मतलब समझो. वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है? आज हम लोग वीडियो में सिर्फ इस फर्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे. इन टुडेज वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड का मीन्स क्या होता है? वैल्यू ऐड कर देना, मतलब हमने किसी भी काम में हमारी कितनी वैल्यू ऐड कर दी. इनकम मेथड मीन्स ऑल ऑफ यू नो कितना पैसा कमा लिया, ठीक है. एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा कर दिया. और वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया? कितनी मेहनत हमने करी है. वॉट एवर प्रोडक्टिव वर्क वी हैव डन, दैट इज नोन एज वॉट? वैल्यू एडेड. इनकम मेथड मतलब हाउ मच मनी वी हैव स्पेंड. ओके, हाउ मच मनी वी हैव अर्नड, पैसा हमने कितना कमाया. एक्सपेंडिचर मतलब कितना हमने स्पेंड किया है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जस्ट द नेम्स ऑफ ऑल दिस 3 मेथड्स. नाउ let us begin our first method, that is value added method. Now see children, value added method. What is this value added method? Just see. Before understanding the first method, remember one important point, okay? Whenever we calculate national income by all the 3 methods, answer will always be the same. जब भी हम तीनों भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमेशा सेम होगा. सो नो प्रॉब्लम विच मेथड वी यूज, बट हियर पॉइंट टू बी नोटेड इज जो क्वेश्चन में मेथड दिया है वही मेथड यूज करना है. आप अपने मन से अगर वैल्यू एडेड मेथड दिया है तो आप इनकम मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो. क्वेश्चन विच मेथड इज आस्क्ड, यू हैव टू डू बाय दैट मेथड ओनली. So let us begin our first method. Our first method is value added method. So now just see what is the meaning of this. This method is used to measure national income in different phases of production in circular flow. इन सर्कुलर फ्लो में जितने भी डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन है उस मेथड उस फेस में दिस मेथड इज यूज्ड. ओके, दिस मेथड इज यूज्ड इन डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन. Now see, what is the meaning of this different phases of production? Just taken, I'm explaining you like this. जैसे you know, there are various phases of production. For example, take an example of wheat. Okay. जैसे प्रोडक्शन करने के बहुत सारे फेसेस होते हैं. जैसे आटे से व्हीट से हम लोग क्या बनाते हैं? फ्लोर बनाते हैं. तो वो कौन सा हो गया? फर्स्ट फेस हो गया. देन फ्लोर से क्या बनता है? फ्लोर इज व्हाट? आटा. आटे से क्या बनता है? ब्रेड. दैट इज द सेकेंड फेज. एंड फ्रॉम ब्रेड व्हाट वी मेक? केक इज मेड. सो दैट इज द थर्ड फेज. सो इन तीनों भी फेसेस को लेके व्हेन वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज नोन एज डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम? जस्ट see the further part of the definition. Every enterprise adds to the value, okay, of the product which it purchases as intermediate goods. Now see, what is the meaning of this? हर एंटरप्राइज या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या करती है? इंक्रीज करती है. जैसे जैसे हम लोग किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो व्हाट वी डू, हम लोग उसकी प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देते हैं, हम लोग उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं. तो हाउ वी विल इंक्रीज, मतलब जो भी रॉ मटेरियल आई एम परचेसिंग उसमें मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगी, हार्ड वर्क वी विल डू, और उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे. दिस इज ओनली द प्रोडक्शन. नो, अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. किसी भी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है? जो भी रॉ मटेरियल वी परचेज, इन दैट लिटिल बिट ऑफ वर्क वी डू,
एंड आफ्टर डूइंग सम वर्क इन द रॉ मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अच्छे प्राइस पे सेल कर देते हैं. सो द वैल्यू विच इज एडेड इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस वैल्यू एडेड. अंडरस्टैंड दिस. value which is added is known as what, gross value added at market price. ध्यान से सुनो, मैं फिर से एक और एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ. वॉट एवर वैल्यू वी आर एडिंग टू अवर रॉ मटेरियल, दैट वैल्यू इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, GDP. GDP means gross domestic product at market price. In the earlier video we have studied this. So gross value added at market price will be equal to GDP, जिसको simple words में what we call it as GDP at market price. जैसे हमने तीनों भी फेस के बारे में बताया. आई टोल्ड यू. फॉर एग्जाम्पल अब तुम लोग ये समझो वैल्यू कैसे ऐड करते हैं. देखो, फ्रॉम वीट वी आर मेकिंग फ्लोर. ओके, सो वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग इन द फर्स्ट फेज, वीट से फ्लोर बनाने के लिए जो भी मेहनत यूज होती है, मतलब जो भी वैल्यू ऐड होती है, दैट वैल्यू इज एडेड. उसके बाद फ्लोर से ब्रेड बनती है, मतलब आटे से ब्रेड बनेगी, उसमें भी जो भी मेहनत लग गई उसमें भी वैल्यू ऐड हो गई. दैट इज ऑल्सो नोन एज value added. So when we add up all these three, what do we get? We get gross value added at market price. Understood this? When we add value at all these three, it is known as gross value added at market price, which is also known as gross value added at market price. को क्या लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, GVAMP, and that is also known as GDPMP. मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके, नाउ सी दिस, यू माइट हैव अंडरस्टूड. अब ये देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये देखो. अब जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. दैट इज ऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें नेशनल इनकम पे जाना है. दैट वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर चैप्टर. GDP से NNP पे कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, सो नाउ वी हैव गॉट टू थिंग्स ओवर हियर. यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं. फर्स्ट इज व्हाट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू एडेड एंड हाउ यू हैव रिटन दैट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. जस्ट सी, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है. सी, वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो भी मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने उसको कितने में सेल कर दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स वॉट एवर रॉ मटीरियल मैंने इसमें लगाया, जो भी मैंने इसमें इनपुट दिया, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू यू. यू माइट हैव अंडरस्टूड. एक एग्जाम्पल ले लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है. ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या है, मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 300 रुपीज, माइनस माई कंजम्पशन इज हाउ मच, 200 rupees. Okay, so my value added will be how much, 100 rupees. 300 minus 200 will be what, 100 rupees. 100 rupees is my value added. और वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितने में हमने किसी भी सामान को बेचा. वैल्यू एडेड मतलब व्हाट, सेल्स. इन शॉर्ट यू रिमेंबर व्हाट, सेल्स. माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स वॉट एवर इनपुट और वॉट एवर रॉ मटेरियल वी हैव यूज्ड. सो दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ सी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, वो जस्ट मैंने तुमको बता दिया. रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल को हम लोग वी कैन ब्रिंग बैक, रॉ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स वॉट एवर वी आर एडिंग टू इट. अब एक और एक बात मैं बता रही थी तुम लोगों को, यहाँ पे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमें NNP पे जाना है. दैट इज
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, जीडीपी से अब हमें एनएनपी पे जाना है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू डू। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन्स आवर बेसिक क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज हाउ टू कैलकुलेट एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें जीडीपी आना चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया, क्योंकि जीडीपी से एनएनपी कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया है। और इस वीडियो में लास्ट में वंस अगेन आई विल टेल यू कि जीडीपी से एनएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एनएनपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी वांट व्हाट, जीडीपी। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी व्हाट यू शुड नो, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हमें निकालना है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू हाउ यू विल कैलकुलेट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। दिस मच पार्ट इज क्लियर टू यू। अब यहां पे एक और एक चीज देखो, सी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो दो तरीके से निकलता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या, वॉट एवर रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। नाउ सी, रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, आइदर वी ब्रिंग फ्रॉम इंडिया और वी ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। या तो हम इंडिया से लेके आते हैं या फिर इंडिया के बाहर से हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट्स। Do you agree with me? Intermediate consumption can also be written as domestic consumption plus imports, क्योंकि रॉ मटेरियल आइदर वी टेक फ्रॉम इंडिया से लेते हैं तो क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन, वी विल कॉल इट एज domestic consumption, and if we bring from outside India we will say that we are importing. So intermediate consumption in exam, in the question it can, if intermediate consumption is not given, it might be also given that domestic consumption is this and import is this, so you have to add up both this so that you can get intermediate consumption. For that I am explaining you all these things. Similarly value of output, ये देखो, सिमिलरली वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है, अभी अभी मैंने बताया, इट्स मीनिंग इज व्हाट, सेल्स। मतलब सेल्स पर ऐसा भी होता है कि सेल्स मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। लेकिन अभी देखो प्रोडक्शन के टाइम या सेल्स के टाइम मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट वॉट एवर सेल्स वी आर डूइंग, जितना भी हमारे पास सेल करने के लिए स्टॉक है वो पूरा स्टॉक सोल्ड नहीं होता है। ऑल द स्टॉक इज नॉट सोल्ड, ओके। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट पूरा स्टॉक हमने बेच दिया, उसमें से कुछ सामान या कुछ पार्ट रह भी जाता है। सो जो कुछ सामान नहीं बिकता है वो भी पॉसिबल है। सपोज मैंने इन अ होल ईयर आई हैव डन द प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट्स, उस 200 यूनिट्स में से मैंने 100 यूनिट्स की सेल कर दी और 100 यूनिट्स आर स्टिल लेफ्ट विथ मी। So 100 units which are that are still left with me is known as what, change in stock. What it is known as, change in stock. Change in stock, what does it comes in change in stock, closing stock minus opening stock. So value of output means what, sales प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्या हो गया, वॉट एवर स्टॉक इज नॉट सोल्ड इन अ ईयर दैट इज नोन एज चेंज इन स्टॉक। All these basic things please understand in the numerical. If value of output is directly not given to you, it will be given sales or it will also be given change in stock. So इन दोनों को add up करोगे, so you will get value of output. In the same way, if in the question intermediate consumption is not given to you, it is given domestic consumption इतना plus this much of rupees of goods were imported. So in that case तुम लोग ये नहीं बोलना मैम यहाँ पे तो intermediate consumption दिया हुआ ही नहीं है, value of output दिया हुआ ही नहीं है, so how you will calculate value added. So don't get confused children, that's why I am telling intermediate consumption का मतलब होता है उसके अंदर आते हैं domestic consumption plus imports. Value of output का मतलब क्या होता है, sales plus change in stock. These two concepts please put it in your mind. Now see, apart from this, if you want to take another formula, जैसे इन दोनों के अलावा वैल्यू एडेड करने के लिए एक और एक फॉर्मूला हमें वी हैव टू सी. सो देन वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स व्हाट, मतलब क्या, जो सामान बेचा वो डोमेस्टिक या इंडिया के बाहर बेचा, ठीक है. वॉट एवर सेल्स वी आर डूइंग, देखो हम लोग सेल्स करते हैं, वी आर डूइंग सेल्स, बट वॉट एवर सेल्स वी आर डूइंग आइदर वी विल डू द डोमेस्टिक सेल्स, मतलब या तो हम इंडिया में सेल करेंगे या फिर इंडिया के बाहर सेल करेंगे. सो द सेलिंग दैट विच वी आर डूइंग ओनली इन इंडिया इज नोन एज डोमेस्टिक सेल्स, प्लस
The selling which we do outside India is known as what? Exports. So it's very very simple. Apart from this, if you want to take another formula of value of output, मतलब value of output निकालने के लिए अगर एक formula चाहिए तो वो ये है domestic sales plus exports. If in the question is these two are given, then you have to take this also. So it is very very simple. Just for making you understand, I am telling you this. I hope this much is clear to you children. कोई confusion कुछ नहीं है. Very very simple it is. Measurement of value, first method is what? Value added method. How to calculate value added? Value added is equal to value of output minus intermediate consumption. Very much clear to you? Then value added को हम लोग क्या बोलेंगे? Value added is also known as gross value added at market price, मतलब GVAMP, okay, which is also known as GDPMP. And why we need GDPMP? We need GDPMP to calculate national income. नेशनल इनकम मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. वैल्यू एडेड मेथड में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी. इफ देर इज एनी डिफिकल्टी देन वी विल सी इन वन लाइव सेशन. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. नाउ सी चिल्ड्रन, अब और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल इन दिस मेथड. सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. Same example we are going to take. See, let us take an example. I hope it is visible to you. ठीक है. See, let us take an example of phases of production. ठीक है, वैल्यू एडेड में मैंने तुम लोगों को बताया था we have to add up all the phases of production. ठीक है, phases of production यहाँ पे क्या है? We are taking the example of flour. ओके, सो सबसे पहले ब्रेड बनाने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व? वी विल सी व्हाट? फार्मर. ठीक है, फार्मर, व्हाट द फार्मर इज डूइंग? फार्मर इज ग्रोइंग व्हीट इन हिज फार्म. ही इज ग्रोइंग व्हाट? व्हीट इन हिज फार्म. ठीक है, सो व्हाट इज द सेल्स वैल्यू? सेल्स वैल्यू इज हाउ मच? 500 रुपीज. मतलब उसने व्हीट अपने फार्म पे ग्रो किया और उसने कितने रुपीज में उसकी सेलिंग कर दी? 500 रुपीज में. ओनली राइट नाउ यू सी ओनली दिस मच. ठीक है, फार्मर ने फर्स्ट पर्सन फॉर मेकिंग द ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए व्हाट वी नीड? वी नीड अ फ्लोर. फ्लोर बनाने के लिए व्हाट वी वांट? व्हीट. एंड हु प्रोड्यूसेस व्हीट? फार्मर. फार्मर ने क्या किया? व्हीट प्रोड्यूस करना है उसको. ही हैज प्रोड्यूस द व्हीट एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? ही इज सेलिंग एट 500 रुपीज. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब हमें वैल्यू एडेड निकालनी है. व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन? यहाँ पे फार्मर के पास क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल क्या उसने डाला? उसने कौन सी वैल्यू ऐड की? उसने तो कोई रॉ मटेरियल उसमें नहीं डाला. उसका रॉ मटेरियल कौन सा था? इट्स रॉ मटेरियल वॉज इट्स हार्ड वर्क. उसने मेहनत की फील्ड में तो उसने व्हीट ग्रो कर दिया. सो वॉट एवर हार्ड वर्क ही हैज डन, so we can't write any amount, so his intermediate consumption will be what? 0. So what will be the value added? You know the formula. Value added is equal to value of output minus intermediate consumption. So 500 minus 0 will be how much? Value added will be what? 500. So first phase of production में फार्मर ने wheat से जो value add की वो कितनी हो गई? 500 रुपीज. ठीक है, that is 500. Now see, अब व्हीट से तो ब्रेड बन सकती नहीं है, केक नहीं बन सकता है. सो व्हाट हैपेंड विद द व्हीट? मिलर के पास गई. यहाँ पे मिल्स में आटा बनता है कि नहीं? दैट इज नोन एज मिलर. मिलर ने व्हीट से क्या बनाया? ही मेड फ्लोर विद दैट. ओके, व्हाट वाज द सेल्स वैल्यू? व्हाट एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड? ही सोल्ड द फ्लोर एट 700 रुपीज. मतलब क्या? उसने 500 रुपीज में व्हीट खरीदा फार्मर से और उसने सेल कितने में किया? ही सोल्ड एट 700 rupees. So what is the value? How much value he added? He added the value of 200. 500 rupees he purchased and 700 rupees he sold the flour. Miller sold the flour. Now the third person involved in this phase of production is last one is baker. Baker is going to either make bread or he will bake the cake. तो केक और ब्रेड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? आटा चाहिए, मतलब फ्लोर चाहिए. तो उसने कितने में? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? ही परचेस्ड, ही सोल्ड द केक एट हाउ मच? 1000 रुपीज. और उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था? 700. मतलब उसने 700 रुपीज में परचेज किया था. ठीक है, उसने कितने रुपीज में परचेज किया था फ्लोर?
700 रुपीज़ में उसने परचेज किया, तो उसकी वैल्यू एडेड कितनी हो गई? 300. I hope this is clear to you. So when you add up all these three, it will come to how much? 1000. So this 1000 is what? Gross value product at market price, which is also known as GDP at market price. So this is very much clear with this example. Now see children, how we have for doing this, what we need, value added method से national income कैसे निकालेंगे? Step by step एक बार फिर से सुन लो. वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम हाउ वी विल कैलकुलेट. वंस अगेन आई एम टेलिंग देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज यू विल डू वैल्यू एडेड निकालना है. हाउ यू विल कैलकुलेट वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और वैल्यू एडेड इज इक्वल टू हाउ यू कैन ऑल्सो राइट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू GDP. मीन इन दोनों का मीनिंग सेम होता है. और GDP अब हमारे पास आ गया है, तो हम लोग नेशनल इनकम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? एक बार ध्यान से सुनो, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था. अब GDP से NNP पे जाना है, कैसे निकालोगे? फॉर गोइंग फ्रॉम, देखो G मतलब क्या? ग्रॉस. अब N मतलब क्या? नेट. ग्रॉस से जब हमें नेट पे जाना है, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? व्हाट हम लोग क्या करते थे? माइनस डेप्रीसिएशन. याद है कि नहीं याद है? ठीक है. D मतलब क्या? डोमेस्टिक. N मतलब क्या? नेशनल. अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जब हमें जाना है, पिछले वीडियो को ओपन करके देखो, उसमें मैंने बताया है हम लोग क्या करेंगे? प्लस NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को व्हाट वी विल डू? ऐड. P और P दोनों में सेम है, तो मतलब कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे MP मतलब मार्केट प्राइस, यहाँ पे FC मतलब फैक्टर कॉस्ट. अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सी द वीडियो, इन द अर्लियर वीडियो मैंने बताया था फॉर्मूलाज में माइनस NIT करेंगे, मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है. सो GDP अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है और NNP निकालना एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है. इट इज़ वेरी वेरी ईजी. प्रीवियस वीडियो का फॉर्मूलाज खोल के देख लो, उसमें मैंने बताया है ये ग्रॉस है, ये नेट है. फिर से बता रही हूँ, वाइल गोइंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट हमें क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन. ये D है और ये N है. D मतलब डोमेस्टिक, N मतलब नेशनल. डोमेस्टिक से नेशनल पे हमें जाना है, व्हाट वी विल डू? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है, मतलब कोई चेंजेस नहीं करना है. यहाँ पे क्या है? MP मतलब मार्केट प्राइस. यहाँ पे क्या है? फैक्टर कॉस्ट. सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस NIT. बस ये एक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला याद रख लो. उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है GDP इज इक्वल टू दिस मच वॉट एवर इट इज. उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, NFIA दिया हुआ है और NIT दिया हुआ है. कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस करके यू कैन कैलकुलेट व्हाट? NNP मतलब नेशनल इनकम तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच क्लियर टू यू. इन दिस वीडियो हमने क्या पढ़ा है?